हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। शुक्र है हमने कल ही डिस्कस कर लिया था वज़ीर आज़म और जो चीफ जस्टिस की मीटिंग थी, तो हमें आज तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो पूरी दुनिया में घूम रही है और बड़े तहलका मचा रही है। कैम्ब्रिज एनालिटिका, पिछले कोई एक हफ्ते से इस पर मुसलसल बात हो रही है। और हमारे यहाँ क्योंकि इलेक्शन जब आने वाले होते हैं तो एक ही तरीका इस्तेमाल होता है, और जिसकी बाज़गश्त आज भी सुन रहे होंगे NRO होगा या नहीं होगा हैं। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो सब ये होता है कि या ये ट्रांसफ़र कर दो, ये इसको पोस्टिंग कर दो, ये बस, और बियॉन्ड दैट कुछ नहीं होता। लेकिन दुनिया इन चीज़ों से आगे निकल गई है, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो एक बरतानवी फर्म है, उनके डायरेक्टर रिसर्च हैं क्रिस वाइली साहब। वो एक विसल ब्लोअर के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप की इलेक्शन मुहिम है, उन्होंने उसमें ख़ासा इस फर्म ने काम दिखाया है जो शायद इलेक्शन लॉस के भी मुनाफी है। अब वो काम उन्होंने क्या दिखाया है पहले तो वो बता देते हैं। और इस पर चैनल 4 ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और उन्होंने ये किया कि अपने ही एक बंदे को एज अ फिक्सर के तौर पर या रिपोर्टर के तौर पर बायर पोस्ट कर रहा था कि हम इंटरेस्टेड हैं, उसको बहरूप बदल कर उसको एक बायर के तौर पर इस फर्म के सामने भेजा और कहा जनाब हमें भी श्रीलंका में जो आने वाले इलेक्शन है वो उसमें कुछ काम दिखाना है, बारीक काम। तो वो उनकी गुफ्तगू भी हुई इस बारे में, थोड़ा सा आप सुन लीजिए और उसके बाद भी बात करते हैं। Hello. Mark Turnbull. Mark Turnbull. Very pleased to meet you. How do you do? Ranjan. Our fixer says he's working for a wealthy Sri Lankan family, wondering how Cambridge Analytica might help them get future candidates elected. The two businessmen in turn pitch their highly acclaimed data analysis work and their global reach. If you're collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about, and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America, and we use that in Africa. That's what we do as a company. Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia, we're now moving into Brazil. China. Brazil is big. Australia, China. But China also. Just starting in China, not in politics. But when we raise the issue of gleaning intelligence on opponents, suddenly a door opens onto an altogether different form of data gathering. You mentioned intelligence gathering as well as part of the mix, didn't you? Yeah, corporate, yes. We have relationships and partnerships with specialist organisations that do that kind of work. You know who the opposition is, you know their secrets, you know their tactics. Thank you, Ranjan. जी जनाब, ये थे उनके फिक्सर जिन्होंने कहा कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो इनके जो CEO हैं अलेक्जेंडर निक्स, जिनको अब उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, उनसे भी बात करने की कोशिश की इन्होंने। पहले वो भी एक छोटा सा टुकड़ा देख लें ताकि फिर हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। Lot more than that. I mean, deep digging is interesting, but equally effective can be just to go and speak to the incumbents and to offer them a deal that's too good to be true, and make sure that that's video recorded. These sorts of tactics are very effective. Instantly having video evidence of corruption, putting it on the internet, these sorts of things. And the operative you will use for this is who? Well, someone known to us. Okay, so it is somebody, you won't use a Sri Lankan person, no? Because then there's issue. We'll have a wealthy developer come in, somebody posing as a wealthy developer. I'm a master of disguise. Yes. They will offer a large amount of money to the candidate to finance his campaign in exchange for land, for instance. We'll have the whole thing recorded on cameras. We'll blank out the face of our guy and we're going to post it on the internet. So it'll on the Facebook or YouTube or something like this. It can be. We'll send some girls around to the candidate's house. We have lots of history of things. बरतानिया के इस निजी चैनल 4
की जो ये इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है किस तरीके से इस बात पर आमादा हो रही है कि कहीं भी इलेक्शंस को वो मैनिपुलेट कर सकती है, और मैनिपुलेट करने के फिर तरीक़े बहुत सारे इसमें बताए गए हैं, जिसमें जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इलेक्शन मुहिम है वो चलाई थी और उसमें बहुत सी फेक कंपनियां वहाँ बनाई गई, इवन ऐसे ईमेल एड्रेसेस बनाए गए कि जो एक दफ़ा ईमेल कर दें तो 2 घंटे बाद ऑटो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं कि खुद ब खुद, ताकि ट्रेस ना मिले कि कहाँ से हो रहा है। और उसका मकसद ये था कि जो लोगों के माइंड्स हैं और लोगों की जो जहन हैं उनको पढ़ लेने के बाद, और वो पढ़ लेने के जो है और पढ़ कैसे लेते हैं, हाँ, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए काफी 3-4 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो है डेटा माइनिंग, एक तरह से इसको अब डेटा ब्रीच नहीं कह सकते, डेटा कंपनी। फेसबुक का जो जो यूएस की अगर हम बात करें तो फेसबुक यूजर्स का जो डेटा इन लोगों ने ऑब्टेन किया था, इनकी स्ट्रेटजी होती है माइक्रो टारगेटिंग। माइक्रो टारगेटिंग मतलब कि 2 चीजों पर ये बेस्ड होती है, आपके ख्वाहिशात और आपको किस चीज से खौफ है। इमोशनल टारगेटिंग करते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है, उनको कैसे पता लगता है कि वसत को क्या चाहिए और वसत को क्या चीज नहीं चाहिए, व्हाट इज वसत अफ्रेड ऑफ, व्हाट डज ही नीड एंड व्हाट डज ही फियर, आपकी फेसबुक डेटा से। अच्छा, फेसबुक डेटा में क्या होता है वो आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये बुनियादी बात है। ये बता दूं उनको ये डेटा मिला कैसे, ये बुनियादी बात है। कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर रिपॉन के नाम से वो किया और उन्होंने अमेरिकी मार्केट के अंदर फेसबुक यूजर्स को, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ऐसा किया जी। अच्छा, तो उन्होंने ये जो है सॉफ्टवेयर दिया और कहा कि हम $1 देंगे, आप ये सर्वे फॉर्म है इसको फिल कर दें। उसमें ये सवाल पूछ लिए गए कि जनाब आपके इंक्लिनेशन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, या आपको क्या चीज़ बेहतर लगती है, कोई आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन हो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। और फेसबुक पे तो आपको पता है कि कितने सर्वे होते हैं। अगर आप कार्टून होते हैं तो आप कौन सा कार्टून होते हैं, 1000 दफा वी ऑल डू इट। 2,70,000 अफराद ने ये सर्वे फॉर्म फिल किया। अब हुआ ये वहाँ से कि कहा यह जा रहा है कि उन 2070 अफराद की जो इंफॉर्मेशन, 2,70,000 की इंफॉर्मेशन तो आ गई उनके पास, उनकी जितने फ्रेंड्स थे आगे। अच्छा, अब मैं क्लियर कर दूं एक चीज, ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो इन्होंने फिल की है। यस, ठीक है, फॉर्म तो सिंपल है ना। डू आर यू मेल फीमेल, आपने यस कर दिया, शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, आपने जो भी टिक कर दिया, वो तो बड़ी नॉर्मल बात है, नथिंग इलीगल। ये एक एप्लीकेशन के थ्रू था। अब आप फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं मेरे से, आपने देखा होगा 1000 एप्लीकेशंस होती हैं, ये आ गया, इस पर क्लिक करें, ये सर्वे फिल करें, यू नो व्हाट काइंड ऑफ केक आर यू, इस तरह के आते हैं ना, वो सही है। इस सर्वे की जो ऐप था उसमें ये भी शिक थी कि जी दिस ऐप विल एक्सेस योर इंफॉर्मेशन। यस नो, वो तो मैंने पढ़ा नहीं होगा। हाँ, वो कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता। और अगर पढ़ते भी हम कहते हैं यार क्या बड़ी बात है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे मेरे से यार, सब कुछ पता है आपको, नथिंग टू हाइड। एग्जैक्टली। उनकी सारी मेटा डेटा जो कहते हैं वो माइन की, वो मेटा डेटा क्या है वो मैं आपको वो अगेन थोड़ी देर बाद। ना सिर्फ ये, उन 2,70,000 लोगों के जितने फेसबुक फ्रेंड्स थे, 1 करोड़ का नुस्खा बन गया ये तो। 50 मिलियन, 5 करोड़ वोटर्स के डेटा इस तरह एक्वायर किए गए 2,70,000 की मदद जी। फैलते हैं ना, अगर हर बंदे के 10 दोस्त हैं, आप हिसाब लगा लें, तो वो तो ट्री बनता जाएगा। तो ना सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने इस ऐप को इस्तेमाल किया है, ना सिर्फ उनका डेटा इनके हाथों में आ गया, बल्कि इनके सारे फ्रेंड्स का। बिकॉज अच्छा, ये उस वक्त गैर कानूनी बात नहीं थी, फेसबुक के टर्म्स ऑफ कंडीशंस में ये लिखा हुआ है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशंस कौन पढ़ता है और इतनी केयरफुली कौन पढ़ता है, कंफ्यूजन होती है ना। तो ये हुआ है। फिर उस डेटा की बुनियाद पर, हाँ, अगर मुझे पता है कि फिर उस डेटा से आपको पता लग जाता है कि वो सब कहाँ रहते हैं, जॉब करते हैं नहीं करते, क्या जॉब करते हैं, शादीशुदा हैं नहीं है, आपके मन के मुताबिक जो चीज आपको ट्रिगर करेगी या आपको कैच करेगी, वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट आपके पास जाएंगे। जैसे अगर आपने कभी ये क्लिक किया ना कि यार आई एम अफ्रेड ऑफ टू मेनी इमिग्रेंट्स मेरी नेबरहुड में, यार ये बहुत आ गए हैं लोग, आपको सारी एंटी इमिग्रेंट खबरें और एंटी इमिग्रेंट एड्स आएंगे। अच्छा, और उसके साथ आएगा वोट ट्रम्प। ये फिर ये है कि लेवल है, हर आदमी के दिमाग में
इंडिविजुअल सुरंग बनाई जाती है। बिल्कुल, बेसिकली यस। आपको याद होगा कि ट्रम्प कैंपेन में बहुत बात हुई थी, फेक न्यूज़ की बात हुई थी। उसके बाद खासतौर पे क्रिस वाइली जिन्होंने वो ये एक्सपोज किया है सारा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो बैनन साहब हैं जो पहले कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे और अब बारह लड़ाई झगड़ा होकर के, जिनकी राइट विंग न्यूज़ वेबसाइट थी ऑल्ट ब्राइटबार्ट, तो उन्होंने इनको हायर किया और सारे इसमें रिपब्लिकन सारे इन्वॉल्व थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर किया। अच्छा, कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर किया कि ऐसी एक कैंपेन बनाई जाए जिसमें हिलरी क्लिंटन को बिल्कुल एक बुरी खातून के तौर पर, और वो उनका ईमेल जो लीक हुई, ईमेल लीक्स, आई मीन दिस वाज वन पार्ट ऑफ द कैंपेन, वो इंटायर कैंपेन नहीं थी। तो वो उन्होंने, और इस पर आप हम तो समझ रहे थे ये काम भाई पुतिन ने देखा। सर वो मैं कह रहा हूँ ना, वन पार्ट ऑफ द कैंपेन। लीक्स, ईमेल हैकिंग अलग थी, इसको ईमेल हैकिंग से कंफ्यूज अभी क्योंकि मामला खुला है, अभी तो रशिया वाला पार्ट आना बाकी वो एक अलग है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि पिछले एक हफ्ते में जो फेसबुक के शेयर्स की वैल्यू है वो $100 बिलियन नीचे चली गई है। अच्छा, मार्क जुकरबर्ग की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहले शुरू में तो उन्हें हुआ करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ हमसे शायद कोई गलतियां हुई हैं, क्योंकि डेटा प्राइवेसी बहरहाल एज अ फेसबुक यूज़र मैं हूँ या आप हूँ, तो हमारी डेटा प्राइवेसी जो है फेसबुक गारंटी करता है, और फेसबुक अनऑथोराइज्डली किसी को वो डेटा नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा आता है इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। मतलब आप अगर खरीद नहीं रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप ही बिक गए हैं। मतलब आपको ही बेचा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और आपका क्या डेटा बेचा जा रहा है, ये एक बहुत ही मजेदार और काफी खौफनाक कहानी है, और ये आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक डेटा के बारे में। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लोगों के फेसबुक डेटा को नाजायज तरीके से हासिल किया और फिर उसको ट्रंप कैंपेन, या अगर सिर्फ यूएस की बात करें, अदरवाइज तो कीनिया और ब्रेक्जिट में भी इनका काम था, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ब्रेक्जिट में सिर्फ कंपनी एग्रीगेट आईक्यू थी, लेकिन तरीकाकार यही था। अच्छा, अब बात होती है कि फेसबुक के पास आखिरकार आपका कौन सा डेटा है। लोग कहेंगे क्या बड़ी बात है जी, उनको ये पता है कि मेरे दोस्त कौन है, उनको ये पता है कि मैं किस रेस्टोरेंट पे गया हूँ, ये मेरे बेटे की तस्वीर है, ये मेरे पिछली छुट्टी की तस्वीर है, सो व्हाट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब ये स्कैंडल सामने आया तो बहुत लोगों ने सोचा कि यार देखें कि हमारे क्या डेटा है फेसबुक के पास हमारे बारे में। तो फेसबुक की सेटिंग्स में एक ऑप्शन है डाउनलोड योर फेसबुक डेटा, तो कुछ लोगों ने ये किया। उनमें से एक थे डिलन मैके, जिन्होंने फिर एक पूरी ट्विटर पे एक थ्रेड अपनी बनाई है कि यार मैंने अपने डाउनलोड किया और मुझे ये पता लगा। क्या पता लगा? पहले तो उसकी पूरी फोन कॉल हिस्ट्री, जो कॉल्स, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी सारी कॉल्स भी हैं, जो उसने अपनी गर्ल माँ के साथ उसकी जो फोन कॉन्वर्सेशंस थी, उसकी पूरी लिस्ट है। किस दिन, किस वक्त, किस नंबर से, कितनी देर के लिए, थ्रू फेसबुक जो कॉलिंग। दिस इज द सर ऑन हिज ओन फोन। तो उसका फेसबुक से पता नहीं, इस पे भी आएंगे ना अभी थोड़ी देर में। अच्छा, ना सिर्फ ये, आप ये आंसर टू योर क्वेश्चन यहाँ है, जितने कॉन्टैक्ट्स पूरी जिंदगी में इसने अपने फोन में सेव किए थे, तमाम लिस्ट है। अच्छा। वो भी जो उसने डिलीट कर दिए हैं, वो भी जो उसके पुराने फोन पे थे, कंप्लीट रिकॉर्ड। आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऐप में आता है अलाउ एक्सेस टू योर फोन कॉन्टैक्ट्स, लोग कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, नतीजा ये होता है पूरी आपकी डेटा उनके पास है। अच्छा, ना सिर्फ ये, हर टेक्स्ट मैसेज की डिटेल्स, किसको, कब, कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए और क्या लिखा हुआ है, वो भी रिकॉर्ड है। ठीक है। अच्छा, और हाँ, इन्होंने ये कहा कि मैं मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू एसएमएस नहीं करता, ये मैं अपनी फ़ोन की बात करता हूँ। अच्छा, ना सिर्फ ये, आपने फ़ोन कॉल्स की बात की, पूरा जो शायद पीटीसीएल के पास भी हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा, वो पूरा रिकॉर्ड, इस वक्त, इस दिन आपने इस बंदे को मिस कॉल दी, इतनी दफ़ा फ़ोन घंटी बजी और उसने नहीं उठाई, दैट लेवल ऑफ डेटा। ठीक है। अब
یہ جو کیمبرج اینالیٹیکا والے ہیں یہ ان کا جو انالیسس تھا اور جو وسل بلوئر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک پوری ایسی سائیکولوجیکل پروفائل آپ بنا سکتے ہیں بندے کی, اور یہ کچھ چیزیں ہیں, میں بھی مزید چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا جو شاید NSA بھی نہ کر سکے. بالکل. تو مطلب ہی سیڈ لٹرلی, اس کا کوٹ ہے وی آر دی NSA's wet dream. یہ جو ہم وہ جو خوابوں میں سوچتے ہیں نا وہ ہم نے کیا ہوا ہے یہ انفارمیشن. اچھا اب اکثر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا, ہاں اب میں تو اپنے کمپیوٹر پہ ایڈ بلاک یوز کرتا ہوں تو مجھے اشتہار نہیں آتے, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ سرچ کرتے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پھر اس کے مطابق اشتہارات آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ زیادہ ماؤنٹینئرنگ یا میں آپ کو بتا دوں میرے بتائیں, حالانکہ میں تو کمپیوٹر اتنا کم یوز کرتے ہیں, میں نے ایک ایسی سرچ کی کہ نیپال میں ہوٹل جو ہیں وہ کون کون سے اچھے ہیں. صحیح ہے. 6 مہینے پہلے کی تھی, آج تک مجھے وہ پٹیاں آ رہی ہیں نیپال کہ اب یہ آفر ہے, اب یہ آفر ہے, وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. اچھا اب یہ تو چلو یار یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ہے, گوگل میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی وی ول سینڈ یو ایڈز بیسڈ آن یور سرچ, پروموشنل ایڈز بھی آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور بات کی جاتی ہے, اور یہ پہلے تو ایک بالکل کنسپریسی تھیوری ہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو فون کا جو مائکرو فون ہے جس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسپیکر, فیس بک اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے اپنے فون کے اوپر فیس بک کا ایپ انسٹال کیا ہوا ہے تو کیا فیس بک میری کنورسیشنز بھی سن رہا ہے؟ اور پہلے لوگ کہتے تھے آپ پاگل ہو گئے ہو یار, ایسا تو نہیں ہوتا. اب اس کے بعد دوبارہ اس میں انٹرسٹ آیا ہے. پہلے فیس بک نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, پھر ایک یہ ایڈمٹ کیا کہ جی نہیں بالکل ہم فون اور کال ڈیٹا رکھتے تو ہیں, لیکن آپ نے ہمیں اجازت دی تھی یار, آپ نے وہ کلک کیا تھا, آپ نے پڑھا نہیں کیا یار, یہ تو ساری اجازت دی ہوئی ہے. تو جی جو اسمارٹ ٹی وی کے بارے میں بھی, اسمارٹ ٹی وی کے بارے میں بھی بائی دا وے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ویریفائی نہیں ہوا ابھی تک, لیکن اسٹوری آئی تھی کہ اسمارٹ ٹی وی کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. نہیں اسمارٹ ٹی وی کے تھرو آپ بالکل سن سکتے ہیں, وہ ڈیٹا مائن ہو سکتا ہے, اگر ڈیٹا ہے کہیں نہ کہیں تو وہ مائن ہو سکتا ہے یا وہ ہیک ہو سکتا ہے. اچھا یہاں پر کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی بائی دا وے, یہ بات کلیئر کریں, یہ دی گئی ہے. اچھا اب جہاں تک یہ فون کی بات ہے تو ایک پاکستانی ہے, اسلام آباد میں رہتے ہیں, منصور بشیر صاحب, ٹھیک ہے, تو ان کا ایک ٹویٹر پر ایک تھریڈ میں پڑھ رہا تھا, تو میں نے کہا کیوں نہیں ان سے بات کریں, بالکل, اور کہ ان کو کیا پتہ لگا ہے اباؤٹ دس کائنڈ آف تھنگ. تو ذرا سن لیجیے. واٹ ہیپنڈ از کہ میں نے کافی عرصے سے کنسپریسی تھیوری سنی تھی کہ فیس بک کے اوپر ایڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ جب سے فیس بک نے واٹس ایپ کو ایکوائر کیا ہے تب سے وہ آپ کی کانورسیشنز کے اندر سے کی ورڈز نکال کے, آپ کی وہ فون کالز کے اندر سے کی ورڈز نکال کے آپ کو پھر ایڈز فیس بک پہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ابھی کافی عرصے سے کنسپریسی تھیوری چل رہی تھی, میں نے اس کو کبھی اتنا بلیو نہیں کیا تھا, لیکن جب سے کیمبرج اینالیٹیکا والا سارا اسکینڈل آیا تو میں نے کہا اس کو میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں. تو ویسے تو میں نے ایڈ بلاکر لگایا ہوتا ہے اپنے براؤزر پہ, لیکن میں نے فیس بک پہ جا کے ایڈ بلاکر آف کیا, اور میں اس وقت اپنے فون پہ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, تو آئی کالڈ ہم اپ, میں اسے بات کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں ہماری کوئی 10-15 منٹ کانورسیشن ہوتی رہی جس میں میں نے کوئی کافی باتیں کیں, جیسے کہ فار ایگزامپل میں ایک بیچ میں چاکلیٹ وغیرہ کوئی میں کھا رہا تھا تو اس کے بارے میں نے کوئی بات کی, تو اس کے 2 منٹ بعد میں نے جا کے پیج کو ریفریش کیا تو سب سے پہلی جو پوسٹ تھی وہ ایک اسپانسرڈ ایڈ تھا ایک چاکلیٹ برانڈ کا. تو میں نے کہا کیا پتہ ہے کوئنسیڈنس ہو. اس کے بعد کوئی تقریباً 15-20 منٹ کے لیے ہم کیمراز اور فوٹوگرافی کے بارے میں باتیں کرتے رہے, کیمرہ لینزز کے بارے میں باتیں کرتے رہے. تو 10-15 منٹ بعد میں نے جا کے پھر ریفریش کیا تو 4 ایڈز آئے تھے, تقریباً 3-4 تھے. ایک کیمرہ کی لینزز کا باقاعدہ ایڈ تھا, ایک کیا نام فوٹوگرافی کلاسز کا ایڈ تھا, اور اس طرح کرتے کرتے وہ کافی ریلیونٹ قسم کے آگے وہ مجھے ایڈز دیتا جا رہا تھا. تو تقریباً یہ ہماری کانورسیشن جاتی گئی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ, اور اس میں ہر 15-20 منٹ بعد میں واپس جا کے چیک کروں, اور وہی پچھلے 20 منٹ میں جو میری کانورسیشن ہوئی تھی اس سے ریلیونٹ ایڈ ہی سامنے آتا تھا. تو یہاں تک اب آئی ایم ناٹ 100% شیور ویدر دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ آل بی افریڈ آف, بٹ میں اپنی طرف سے تو کافی خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس طرح مطلب میری کانورسیشنز کو کیا پتہ سچ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے یا اسکرین کیا جا رہا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر مجھے ایڈز دیے جا رہے ہیں. تو دس واز سم تھنگ دیٹ آئی فاؤنڈ ٹو بی کوائٹ اسکیری. اب میں انکریج کروں گا کہ لوگ اپنی طرف سے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, واٹس ایپ پہ کال کریں کسی کو اور فیس بک پہ جائیں, اور اسی کال کے دوران ہر 10-15 منٹ بعد ریفریش کر کے دیکھیں کہ ویدر وہ جو کانورسیشن کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں اس سے ریلیونٹ کوئی ایڈ سامنے آتے ہیں یا نہیں. یہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا, نہیں آپ بالکل صحیح کہہ, مجھے پتا تھا آپ نے یہ کہنا ہے, کہہ دیں. 23/10
2321 रुपए में आता है प्लस VAT। यार वो रखें जिस पे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप SMS रिसीव करें। यार मैं सर आप उस पे नहीं करते अपने उस पे तो ये मुझे नहीं पता आप किस चीज़ पे बात करने लगे हैं। नहीं मैं फेसबुक लैपटॉप पे देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आई मीन अब मैं आपके कैंप में शामिल होने वाला हूँ कुछ देर में। अभी के लिए ब्रेक चाहिए। 2300 रुपए में आता है, इस सब से आप बच नहीं बिल्कुल बिल्कुल इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं वो सब लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं बहुत और चीजें जिनसे आप नहीं बच सकते वो आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा अब बात हो रही थी फेसबुक की तो अब जरा जनरल मेटा डेटा पे आते हैं। गूगल आपके बारे में क्या जानता है और कैसे जानता है? अच्छा गूगल में भी एक ऑप्शन है टू डाउनलोड योर डेटा। तो एक शख्स डिलन करन उन्होंने यही किया। उसने कहा कि यार तकरीबन कोई 35 गीगाबाइट्स की फाइल थी वो, जिसका मतलब है तकरीबन 10 लाख माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स। मतलब जिस डॉक्यूमेंट पर आप एक कॉलम लिखते हैं ना सर, 10 लाख कॉलम वर्थ ऑफ डेटा ये था। क्या डेटा था? अच्छा पहले वो आता है गूगल मैप्स पे। जब भी अगर आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन पे, और बहुत लोग आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल के पास आपकी हर एक लोकेशन मौजूद है। मतलब कि जिस दिन से आपने गूगल मैप्स इस्तेमाल करना शुरू किया, दे नो कि आप कहाँ गए हैं, आपको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा है, आप वहां कितनी देर रहे हैं, आपने वहां क्या किया है। ठीक है किया है? मतलब कहां गए हो, किस रेस्टोरेंट में गए हो, किससे मिलने गए हो, ऑल ऑफ दैट वो सारी डेटा है। उसके साथ इसने एक मैप भी साथ में दिखाया है। आयरलैंड के रहने वाले हैं और मैप पे देखा कि यार हर एक जगह जहाँ मैं गया हूँ, किस तरीके से मैं गया हूँ, ट्रेन में गया हूँ, गाड़ी में गया हूँ, और वो अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अच्छा यार इस शहर से यहाँ इस शहर में पहुंचने में 3 घंटे लगे, इसका मतलब है कि वो गाड़ी में गया है। अच्छा 2 घंटे लगे, इसका मतलब है कि वो ट्रेन में गया। 1 घंटे लगे, मतलब कि वो प्लेन में गया। तो इससे आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स का भी आइडिया हो जाता है। अगर प्लेन से ट्रैवल कर रहा है तो फिर नोट वोट होगा बंदे के पास, इसको महंगे इश्तेहार बिल्कुल दो, लाइक दैट। अच्छा फिर और अभी ब्रेक में बात हो रही थी सर्च हिस्ट्री, राइट? और सब लोग परेशान होंगे सुन के कि जितनी भी आपने गूगल सर्चिंग की है, चाहे आपने फोन से की हो, चाहे आपने कंप्यूटर से की हो, चाहे आपने लैपटॉप से की हो, डेस्कटॉप से, व्हाटएवर, पूरा डेटाबेस है। तो रिमूव आप 10 दफा डिलीट करो बॉस। आप अपने ब्राउजर से डिलीट कर रहे हो, आप गूगल के हेडक्वार्टर से डिलीट नहीं कर रहे। ओके प्लीज नो द डिफरेंस। इट स्टोर्स एवरीथिंग एंड यू हैव टू डू इट ऑन एवरी डिवाइस। फिर आपको डिलीट करना होगा। और अगर हेडक्वार्टर उड़ा दे फिर क्लाउड भी तो होगा ना सर, क्लाउड को भी उड़ाना होगा फिर तो आप आसमान पे, तो मतलब उन्होंने भी अपना डेटा क्लाउड में भी किया, ऐसा भी होगा। यार बहुत तेज लोग हैं, बड़े ऐसे वैसे बॉस। अच्छा तो जाहिर है कि इन सारी चीजों को मिला के, अच्छा ऑल योर यूट्यूब सर्चेस, ठीक है, अच्छा इन सारी डेटा को मिलाकर क्या आपको पता लगता है? फर्ज करें कि मैं बहुत ज्यादा सर्च कर रहा हूं, बच्चे के पहले साल में क्या मुश्किलात होती हैं, तो दे नो कि आई एम अ न्यू पेरेंट। मैं रिलीजियस सर्चेस कर रहा हूं, उनको पता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं यहूदी हूं, मैं ईसाई हूं, क्या है, मैं किस तरह, मेरी पॉलिटिकल बिलीफ्स क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लीनिंग्स क्या है। यू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, आपके पास ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल आएगी जो KGB और CIA की सोच में होगी। एंड इट इज, और आप ये इंफॉर्मेशन, ये नहीं है आपको गूगल उसी दीवार में चुन देगा सर। और बेस्ट पार्ट, दीवार पे आप यकीन रखते हैं सर, बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको करंट लगा रहा है या आपको ड्रिल लगा लेगा, बताओ आप अपनी खुद दे रहे हैं प्लेट में, खुद दे रहे हैं सर। ये दिस इज माय लाइफ, टेक माय लाइफ। लेकिन मतलब यू नो मेरा भतीजा है US में, उससे तो मैंने फेसबुक पे बात करनी है ना। दिस इज द प्राइस यू पे, ठीक है। इन्होंने जो है इस डेटा कंपनीज ने फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स तक रिक्रूट किए हुए हैं, MI5 MI6 के, ताकि वो अच्छा अब वो तो यस एग्जैक्टली उसको एनालाइज करने के लिए, और भी उसमें बहुत है। अच्छा ये जितनी आपने एप्स और एक्सटेंशंस इस्तेमाल की हैं गूगल पर, वो सब कुछ उनको पता है। मतलब कि उनको ये पता है कि आप फेसबुक किस टाइम यूज करते हैं, तो आप फारिग कब होते हैं, आप काम पर कब होते हैं, आप सोते कब हैं, आप जागते कब हैं। अच्छा जब सभी पता है तो फिर क्या डरना? नहीं अब देखो ये किसको पता है,
देखो दिस इज द प्रॉब्लम, आप इन कंपनीज को ट्रस्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है तो अमेरिकन कंपनीज ना, इज इट इम्पॉसिबल के अंदर फिर CIA और NSA के लोग बैठे हुए हैं या ये कोलैबोरेट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बैठे बैठे प्लेट पर पूरी दुनिया की डेटा आ गई ना, आपको टारगेट करना है तो कोई भी कर सकता है। अच्छा आप बड़े लेवल की बात कर रहे हैं ना, मैं तो इस पे हैरान हूं कि मुझे रोजाना इंश्योरेंस एजेंट का फोन कैसे आ जाता है, मुझे कर्जे की ऑफर कैसे आ जाती है, मुझे किसी डॉक्टर के क्लिनिक का कैसे फोन आ जाता है। उन्होंने भी तो डेटा खरीदा है ना, उन्होंने भी डेटा खरीदा। अच्छा ये तो बड़ा, लेकिन ये तो बड़ा वो बचपना वाला है ना कि मोबाइल फोन की दुकान से ले लिया, भाई इसके नंबर दे दो, और ये मोबाइल फोन कंपनी करती है। उन्हें क्या तो ये मतलब वही चीज है, लेकिन लेवल को टाइम्स 1 मिलियन कर दो। ये है बिल्कुल एग्जैक्टली दैट। तो एनीवे गूगल ड्राइव, फोन, बिजनेसेस, आपने क्या चीजें खरीदी हैं, आपने क्या चीजें वापस की हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारा डेटा है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें फेसबुक के डेटा के साथ, तो इसी शख्स ने अपना फेसबुक डेटा भी डाउनलोड किया, वो था 600 MBs, जिसका मतलब है सिर्फ 4 लाख वर्ड डॉक्यूमेंट्स। और गूगल का डेटा कितना था, अगर एक सेकंड आप मुझे तो बताएं, हाँ सॉरी 5.5 गीगाबाइट्स। तो एक्चुअली गूगल के पास आपका ज्यादा डेटा है, मतलब मेरा डेटा 5.5 गीगाबाइट्स है गूगल के पास। इसका गूगल के पास ज्यादा होगा, मुझसे तो ज्यादा डिपेंड करता है सर, नहीं फेसबुक की निस्बत ज्यादा, इसलिए कि मेरा तो हर स्टेप वो रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ वही ना, हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर तोड़ क्या है, ठीक है, आजकल ये डिलीट फेसबुक हैशटैग भी चल रहा है कि जी डिलीट करो, और बहुत लोगों ने डिलीट किया है। प्लेबॉय मैगजीन ने अपनी फेसबुक डिलीट कर दी है कि सर ये तो काम सही नहीं है। इलॉन मस्क जो बहुत बड़े बिल्कुल इलॉन मस्क जो बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, उन्होंने भी अपने सारे फेसबुक पेजेस डिलीट कर दिए। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का ओनर है, ऑन रिकॉर्ड है कि जी अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज ये अपनी वो जो वेब कैम है ना उसके ऊपर टेप लगा दिया करें, वो खुद कह रहे हैं। तो आप सोचो कि क्या लेवल है। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? अगर हम फेसबुक की बात करें तो सबसे पहले तो कॉमन सेंस कि आप अपनी प्रोफाइल पर जाएं और आप देखें कि आप कितनी इंफॉर्मेशन फ्री में लोगों को दे रहे हैं, कि अभी मैं घर से बाहर जा रहा हूं, अभी मैं यहाँ जा रहा हूं। ये तो अब बेसिक सिक्योरिटी हो गई ना। और आपको पता है कि फेसबुक के थ्रू लोग किडनैप भी हुए हैं, उनको पता है यार ये तो छुट्टी पे गया हुआ है, देखो श्रीलंका की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, घर पर डाका मारो। अच्छा चलें, एक ब्रेक का वक्त आ गया, फिर आई गेस जो 2-3 फिर मजीद आपको मजीद जी जी वेलकम बैक। हम बता रहे थे कि आप अपने आप को महफूज कैसे कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर महफूज करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ हद तक आप कर सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो रिव्यू करें। फेसबुक पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उनको बार बार दोबारा चेक करते जाएं और उनको मॉडिफाई करते जाएं, क्योंकि उनके रूल्स चेंज होते रहते हैं। आपकी पुरानी पोस्ट पर वो अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये बात बताएं, क्योंकि अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया और वो आपकी सारी डेटा शेयर कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। यू सी कलेक्टिव सिक्योरिटी इसमें आ जाती है। अच्छा, क्योंकि ये सारा मसला शुरू हुआ एक ऐप से, तो कम से कम ऐप्स का इस्तेमाल करें। मैं दावे से कह सकता हूं कि मोस्ट पीपल जो फॉर एग्जांपल ट्विटर पर या फेसबुक पर ऐप्स को एक दफ़ा इनेबल करते हैं, वो कभी मुड़कर दोबारा नहीं देखते हैं कि अभी तक इनेबल है। वो ये सर्वे तो मैंने 3 साल पहले भर दी थी, अभी तक वो ऐप इनेबल्ड क्यों है? फिर आप उसको डिसअलाउ करें। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो डर लगता है जब कोई भी ऐप कहता है कि कैन आई हैव एक्सेस टू योर फोन, योर कॉन्टैक्ट्स एंड योर कैमरा। मैंने कहा तू कौन होता है यार, व्हाई डू यू वांट टू रीड इट? मैंने कहा नहीं चाहिए, सही, आई डोंट वांट टू नो कि मैं किस किस्म की पेस्ट्री हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है हर मेजर साइट पर, ये भी एक बेसिक चीज़ होती है, ये आप इस्तेमाल करें। एक वेबसाइट है और ये अगर आप नोट कर लें तो आपके काम आएगी, हैव आई बीन पॉन्ड, HIVEIBENPWNED.com। अगर वहाँ पर आप जाके अपनी ईमेल को एंटर करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये किसी डेटा ब्रीच या कहीं कितनी जगहों में ये लीक हुई है, मोर और लेस। एग्जैक्ट डिटेल्स बहुत लंबी है, वो मैं आपको भी बता नहीं सकता। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ है, फायरफॉक्स ब्राउज़र होता है ना, फायरफॉक्स ब्राउजर, क्योंकि क्रोम तो है ही गूगल का ब्राउजर ना, फायरफॉक्स ब्राउजर ने एक एक्सटेंशन निकाली है कॉल्ड फेसबुक कंटेनर एक्सटेंशन। वो क्या करती है कि आपका जो सारा डेटा है वो फिर फेसबुक को नहीं जाता, वो उस एक्सटेंशन में चला जाता है, तो वहां पर कदरन महफूज रहता है। अच्छा, जाहिर है कि अगर कोई फायरफॉक्स को पर हैक कर दे तो वो एक अलग बात है, तो बेसिकली ये चीज़ें। अच्छा, एक जाहिर है कि इन मौक़ों पर एक जाली खबरें भी बहुत आती हैं, तो एक जो जाली खबर ये आई है कि मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि जी अगर आप BFF
लिखें क्या कहते हैं ट्विटर पर, तो आपका अकाउंट प्रोटेक्ट हो जाएगा या ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस तरह के जो सर्वे आते हैं कि जी मैं मेरी मौत किस सन में होगी, वही है। ये जब खेलेंगे आप तो आपका खेलने के बाद ये भी वही यही चीज आपका डाटा कर सकते हैं पोटेंशियली। अच्छा, और फिर ऑब्वियसली जितनी भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं उनको पढ़ें, उनको बार बार पढ़ें, अगर नहीं समझ आ रही तो खुदा के लिए क्लिक ना करें, सिंपल। यानी काम करना पड़ेगा। चले एनीवे, कैम्ब्रिज एनालिटिका के हवाले से ये भी खबर आई थी दरार साहब के ये नवाज शरीफ ने भी इस्तेमाल किए हैं। जी सर, हैं 2013 में, और हमें पता ही नहीं था यार। नहीं, हमें किसी को नहीं पता था। 2018 में पता नहीं, 2013 में नहीं 18 में मैं कह रहा हूँ यार, अगस्त में, जुलाई में, जो भी है ये खबर आई थी। यूरेशिया फ्यूचर एक वेबसाइट है, प्रो रशियन किस्म की वेबसाइट है। उमर अली यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफी एक तफसीली रिपोर्ट लिखी है कि इसमें कोई लेग्स नहीं है, कोई सदाकत नहीं है, और यूरेशिया ने अब खुद भी वो स्टोरी वहां से हटा दी है, और कुछ ब्लॉग्स जैसे प्रो पाकिस्तानी .com ने भी वो स्टोरी हटा कर दी है, और बाय द वे एक अपॉलॉजी भी दी है कि जी दिस वाज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब हमने रिव्यू किया विद द रिपोर्टर तो कोई एक्चुअल सोर्स उसके पास नहीं थी, और इसमें ऐसी बातें की जा रही थी कि जी ये बिल्कुल ये बोल के खिलाफ और एग्जैक्ट जैसी महान कंपनी के खिलाफ भी ये काम करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, और कोर्ट भी बोल वालों को किया है, तो जहाँ पे भी बोल वाले कोर्ट होते हैं। 35 पंचर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने वो नहीं, वो अलग सीन है, वो अलग सीन है। लेकिन इट आल्सो शोज के सर खबर गलत भी हो तो किस तेजी से फैलती है, क्योंकि हमारे तमाम टीवी चैनल्स ने उसको रिपोर्ट किया, न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया, सियासतदानों ने ट्वीट किया। मुझे ये जो तुम लोगों ने प्रोग्राम कर लिया ना, अब इसके बाद मैं जाऊंगा जाम शोरो पुल पे जिस पे लिखा हुआ है तस्वीर लेना मना है। गूगल को पता होगा आपका, तू लाख चले रे गोरी थम के है। तो anyway, तो आप भी। अच्छा, अब कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्टोरी, डेटा वाली बात तो बहुत छोटी बात है। यहाँ पे आप ये सुन रहे थे, कुछ इसमें और पार्ट्स भी थे। उन्होंने मतलब सेक्स वर्कर्स को भी भेजा है कैंडिडेट्स के पास स्टिंग ऑपरेशन कराने के लिए हिडन कैमरा के साथ, ताकि फिर इसकी क्लिप बनाकर ना एन वक्त पर इलेक्शन से पहले हम ऑनलाइन कर देंगे। तहलका.com भी कर सकते हैं। तो इट इज दुनिया का सबसे पुराना स्ट्रिंग ऑपरेशन अगर कहा जाए तो ये देखो, नई बात इसमें कोई नहीं है। आई मीन ये पुरानी इलेक्शन मैनिपुलेशन स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन नए अंदाज में इन द वर्ल्ड ऑफ बिग डेटा। और अगर आप सोचें कि अगर आपकी जो रियासत है वो थोड़ी सी भी कंट्रोलिंग किस्म की है, उसके हाथ से ये डेटा आ जाए, ये बताओ कैम्ब्रिज एनालिटिका जॉर्ज ऑरवेल अगर जिंदा हो जाए तो उसे आज अपना मुलाजिम रख लेगा या नहीं? सर आपको याद है? आपको याद है ना 1984 में आप टीवी को देख रहे हो तो टीवी आपको देख रहा होता है, राइट? आ गया ना सर, वही है ना सर, एग्जैक्टली दैट। इनफैक्ट ये तो जॉर्ज ऑरवेल की सोच से 10 कदम आगे निकल गया। ऑब्वियसली उसको नहीं पता था कि क्या टेक्नोलॉजी आएगी। अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहा ये काम, तो हम जरा हटके एनालिटिका बना लेते, Why not कमा लेंगे यार। मतलब 2018 से पहले सर, 2018 तो आ ही गया है, मतलब इलेक्शन से वो हमेशा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। हमेशा अच्छा, कैम्ब्रिज एनालिटिका यही हो रहा है ना? अच्छा, सिर्फ एक कंपनी थोड़ी होगी यार। पालांतीर एक और कंपनी है व्हिच इज यूज्ड बाय द पेंटागन। ओके, वो भी यही काम करते हैं। ब्लैक क्यूब एक इजरायली कंपनी है, वो भी ये काम करते हैं। और अगर आपको याद होगा, कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, तो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट किया था ये फिटनेस एप्स पर, और वो जो मिलिट्री बेसिस के सीक्रेट्स वहां से रिवील हो रहे हैं। तो सर इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट पिक्चर। और मजे की बात पार्ट ऑफ दैट पिक्चर कि ये कंपनीज में ये जो लड़के हैं, दे आर 25, 26, 22, 23 जो कंप्यूटर के अंदर घुसे हुए हैं ना, और वही ये अब ये जो क्रिस वाइली है, नाउ ही इज 28, और हम बात करें 25 की, हेड ऑफ रिसर्च था। मतलब वो लेकर के कॉन्सेप्ट गया है, और वो फखर से कह रहा है कि हाँ जी देखा, फिर ट्रम्प का इलेक्शन भाई ने करवा दिया ना। तो वो अब वो उसका जो सीईओ है अलेक्जेंडर निक्स, वो तो जाहिर है सीईओ है, तो उसने कहा जी आपको फिर पता लग गया ना, हम तो इधर भी करा देंगे उधर भी करा देंगे। कंपनी ने उसको सस्पेंड कर दिया। क्रिस वाइली साहब जो है ना, वो हर जगह उनको इंटरव्यूज के भी पैसे मिल रहे हैं। बम्बई का दादा कौन, और कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो ये है, कीनिया में भी इन लोगों ने काम किया था, बिल्कुल ऐसे ग्राउंड लेवल रिसर्च करके। बहुत जगहों में, इंडिया में भी आजकल बड़ी बातें चल रही हैं कि तूने कैम्ब्रिज एनालिटिका किया। इंडिया में कल नाम आया था कि कांग्रेस का है ये सर, अनदर पैनामा चल। हाँ, कांग्रेस का नाम आया, कांग्रेस वालों ने कहा हमारा तो नाम नहीं है, तो बीजेपी वालों ने कहा नहीं जी ये कांग्रेस वाले। कोई कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये जो तुमने 2-3 कंपनियां बताई, उनकी कस्टमर लिस्ट अगर ब्रेक कर देना 2017-2018 की, एक और पनामा बॉस
کیا بات یار یہ کام کرتے ہیں اور کچھ نہیں. تو کرس وائلی کو فون دلاتے ہیں اور کہتے ہیں یار بھائی اب ہو گئی تم نے شرعام اعلان کر دیا. نہیں میرے فون میں سننے ہوں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو پتہ لگ گیا. تو بس ٹھیک ہے پھر کتنا بتائیں کتنا ڈریں, نہیں بس بہت کتنا ڈرائیں. میرا گلا سوکھ گیا ہے. جسٹ چل یار, چل کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہونے والا. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.